Okay, guys, sorry, my voice was mute. So I just unmute my voice. I just want telling with this video regarding for the WhatsApp Business API regarding Kit 19 WhatsApp Business API, which can be help with the business to do the WhatsApp broadcast automation and all. So first of all, you would like to understand, you have to understand what is the differentiate about in between your official WhatsApp API and normal WhatsApp, which you are using, and lots of company are giving the normal WhatsApp and normal WhatsApp API. And so I would like to tell you what is the difference and how it look like the WhatsApp business account and official. It is also called the official business account. Okay. Uh, so what is the process of to take this? So I'd like to tell you later on. So I would like to show you first the how to look like. So as of now, I'm going to show you. So this is a Kotak Mahindra Bank where this account is already verified for the Meta because of this brand. Because it is not easy to take this verified account, but you have to provide you some document about your organization or product in which you are dealing, so that Meta will verify your business model and then will give you the verified account. Okay, but not this brand and verified number. Your number in the first scenario, your number only visible to the customer, and this green tick will come later. There's some scenario I'd let you know after completion demo. So what is the strategy and what is the term and condition to take this green badge? Yes, so your brand name should be show while you send you the message to your users, right? They can find you. So if you're looking there, I just showing that you're looking some chatbot. It is also helpful to your for your business to provide the information and detailed information to your customer whenever you need, or whether because the internet penetration and more people like to come on your WhatsApp and come to know about your sales and services and products which in which you are dealing. Correct. So this come only the WhatsApp Business API. It is name given WhatsApp Business API. By the way, you can say in the simple word WhatsApp Business API as well the official WhatsApp account and verified account. Okay, and I hope you got to know about key what is the difference between personal WhatsApp, normal WhatsApp, and official account. Official account is a paid account because all chats will be chargeable, and some companies like us so take the rental charge for the platform charge. It is also taken by us and another company. Two, because that we'll provide the dedicated dashboard how it would be work that. So I will tell you, and we'll cover the in this demo. So this is a chatbot. Actually, you are looking some sort of question. So that is work of chatbot. Okay, bot can help you business to give you the information 24/7 your customer to resolve their query related to service and sales. Correct. And next part, I'll just log in my account already. So you'll be looking this how where you can access the WhatsApp API. This is, and you're looking some features in this like conversation, contact upload, broadcast, and broadcast button will also come here. I'll just hide that. Templates, chatbot builders, snippets, catalog, product orders management, and also API, which can be integrated your any third party software and e-commerce website in which business you are, no matter like you're in education. So you might be have the your education software, so you can get it integrated with your software to no not only broadcast but also you can do the notification like when you do and generate the invoice or bill from your software, so automatically your any bill message and kind of message should be go to your customer. So API, all our API documents API are there. So with the help of your developer you can get it integrated with your software which in which you are do you have right now, either CRM or website. Yes, or another tool can be used by you. Is being used by you. Yes, right now. So API will be helped out to you integrate that. So we'd like to first to understand the dashboard, which is comes under the conversation. So if you click on that, such kind of conversation dashboard where you can handle your receive which you are receiving your incoming and you are doing outgoing, right?
यस, तो आई टेल यू कि यहाँ पे जैसे अभी मैंने कुछ कॉन्वर्सेशन की जहाँ पे आपको समझ आया कि मतलब आपका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप और ये जो बिजनेस अकाउंट है वो कैसे काम कर रहा है उसमें, और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल अकाउंट क्या है और ऑफिशियल अकाउंट क्या है। ऑफिशियल में ये पर्सनल में जैसे आप ब्रॉडकास्ट करते हुए कभी आपको आपका नंबर ब्लॉक होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम लगे हो तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई आप कर रहे हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है और परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। यस, तो आप उससे बचे तो ऑफिशियल अकाउंट में ये सिनेरियो आपको नहीं मिलता है, आपकी सेफ्टी रहती है कि आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा, कोई इंडिविजुअल ब्रॉडकास्ट करते हो। बेसिक चीज है कि आपका कंटेंट इसमें वेरीफाई होके जाता है। तो यहाँ पे जो ये किसी का रिप्लाई आया या आप कुछ चैट या टेम्पलेट भेजना चाहते हो तो वो इजीली यहाँ से भेज पाएंगे। दैट इज द सिनेरियो इन दिस व्हाट्सएप। तो यहीं पे आपका जैसे मल्टी यूजर एक्सेस भी रहता है कि आपके पास टीम है, नंबर ऑफ टीम है जो सेल्स हैंडल करते हैं, इंक्वायरी हैंडल करते हैं या सर्विस, तो वो यहाँ पे इजीली मल्टीपल यूजर एक्सेस रहता है। आप इजीली नंबर ऑफ लोगों को अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये रहता है। दूसरा सिनेरियो क्या रहता है कि 10 सेकेंड मैं इसको ना वो सी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक जैसे आपको टाइमर दिख रहा है, तो आपकी जो चैट है इसमें मेटा का रूल है कि यू कैन नॉट डू द चैट विदाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर कस्टमर। यानी अगर वो कस्टमर आपको रिप्लाई नहीं करता है तो आप उसके साथ चैट नहीं कर सकते। जब वो रिप्लाई करेगा तो ही आपकी मैनुअल चैट करने की विंडो खुलेगी। मैं यहाँ पे मैसेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आई एम टेलिंग यू कि डू यू कैन नॉट डू द मैनुअल चैट विदाउट गेटिंग योर रिस्पॉन्स फ्रॉम ए कस्टमर। तभी ये विंडो ओपन करेगा मैनुअल चैट करने की। और यहीं पे आप XYZ जो भी मैसेज या कोई भी आपको मीडिया भेजना है यहीं पे सिलेक्ट करके भेज पाएंगे। ये वैसे हमने व्हाट्सअप कॉमर्स भी दिया हुआ है ऑलरेडी। टैम्पलेट्स यहीं से जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो कोई ऐसी पार्टी जिसने आपको कल या कुछ घंटे पहले या 24 घंटे हो चुके हैं, मतलब उसकी विंडो बंद हो जाती है 24 घंटे के बाद ही। मतलब 24 घंटे के बाद जो मैनुअल विंडो है ये बंद हो जाएगी और आपके पास वो विंडो आएगी। मतलब ये दिखती कैसे है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अजय शर्मा का भी विंडो खुला हुआ है, यस, और समीर जी का भी शायद खुला हुआ है। तो मेरे पास अभी ऐसा कोई एग्जांपल यहाँ पे देखने को मैं किसका नंबर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक नंबर यहाँ पे लेता हूँ, आई थिंक ऐड भी करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे आपका जो नंबर है, ठीक है, आप कैसे मान लो जो रिप्लाई आएंगे इसमें एक अच्छी खास बात है, जो भी रिप्लाई आपके आएंगे वो सारे यहीं पे हैंडल होंगे। इसका कोई ऐप नहीं रहता जैसा नॉर्मल ऐप आप यूज करते हो। या तो किट 19 खुद अपना ऐप देगी जहाँ पे आप चैट हैंडल करेंगे, या आपका जो चैट्स आ रहा है तो वो वेब पे इस तरह से यहाँ पे लाइन अप होगा और आपके मल्टी यूजर में ये असाइन हो जाएगा। यानी 1 to 1 2 3 जैसे आपके 10 लोग हैं तो 10 लोग, 10 लोग जैसे आप आपके पास हैं तो 10 के 10 लोग आपके चैट एक्सेस कर रहे हैं एट अ सेम टाइम। अलग अलग चैट असाइन हो जाएगी यूनिक, आप चेक भी कर पाओगे कौन सी चैट किसको गई है, कौन किसको हैंडल कर रहा है। तो इजीली आपको यूजर वाइज सिस्टम इसमें दिया है, यूजर हायरार्की पे काम करता है। जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग यूजर है, राइट, या अदर कोई यूजर आ जाता है, वो चीज़ें हैं कि अजय शर्मा किसको गई है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें। तो ये इजीली रहेगा। बाय द वे हमने एक CRM भी इसमें साथ में अटैच किया है, बहुत ही इफेक्टिव यानी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि यहीं पे आप जैसे लीड की और भी अदर इन्फॉर्मेशन यानी कस्टम फील्ड वगैरह भी ऐड करके और भी डिटेल वगैरह सेव कर सकते हो, या यहाँ से प्लस करके आप कस्टमर को इजीली बहुत ही नॉमिनल सी इन्फॉर्मेशन जैसे नाम और नंबर चाहिए उसका बस, और उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैं क्या करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं एक अपना नंबर लेता हूँ एंड जस्ट सेकेंड। ओके, जैसे मैंने ये नंबर लिया है और यस, और मैंने ये एक नंबर में अब तो लेता हूँ। ये मैंने नाम, ओ सॉरी, ये नंबर आ रहा है ऑलरेडी। मैं सर्च करता हूँ, शायद ये नंबर यहाँ पे ऑलरेडी जैसे यहाँ पे इस नाम से उज्जवल करके आ रहा है, राइट। तो अगर मैं इनको यहाँ से जैसे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखा रहा है यूजर नोट सब्सक्राइब यानी चैनल। तो होता क्या है कि वैसे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर रिस्पॉन्स आता है वो ऑटोमेटिकली चैनल में ऐड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर आपने CRM में जाके एंटर कर दिया, क्योंकि एक व्हाट्सएप एक चैनल है, राइट। तो आपको इसको चैनल में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बटन आ रहा है और यहाँ पे नंबर आपको दिखेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे, यानी आई हैव एडिड, मतलब दिस लीड आई हैव एडेड इन चैनल, राइट।
तो अगर मैं इसको दोबारा सर्च करूं तो दोबारा मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये चैनल में ऐड हो चुका है और यहाँ पे आ रहा है यू मे सेंड ओनली द व्हाट्सएप विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होंगी। तो आपको यहाँ पे जैसे मैनुअल चैट करने का बटन नहीं आ रहा है, ये रूल है मेटा का। आप यहाँ पे खाली अभी टेम्पलेट भेज सकते हो, जब तक ये पार्टी आपको रिप्लाई नहीं करेगी तो आपके पास स्क्रीन नहीं ओपन होगी। अगर आप इसको वहां से रिप्लाई नहीं आएगा, ये ऑप्टिन है या रो, मैं कहता तो सामने वाले का भी राइट्स है कि भाई आप चीज़ों को कर सकते हो। 10 सेकेंड। और मैंने यहाँ पे एक इमेज, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझे, यहाँ पे आपको देखिए जो कंटेंट आपका वेरीफाई होकर जाता है। और ये टेम्पलेट मेरी लिस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप ब्रॉडकास्ट जब करेंगे तो आपको टेम्पलेट क्रिएट करने होंगे क्योंकि आपका कंटेंट वेरीफाई होकर जाता है यहाँ पे। तो ये टेम्पलेट का लिस्ट आ रहा है। और टेम्पलेट में आपको दो तरह के टेम्पलेट बनाते हैं, या तो आप टेक्स्ट बनाते हैं या आपका मीडिया इंटरेक्टिव है। मीडिया इंटरेक्टिव में आप इमेज वीडियो टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। और जो मैंने बताया कि आपका टेक्स्ट वाला रहता है, टेक्स्ट इमेज रहती है, टेक्स्ट के साथ साथ ये चीज़ें रहती है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये यहाँ पे, और ये कंटेंट आप यहाँ से प्लस करके, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो मैसेज है वो चार्जेबल है विंडो के हिसाब से। इसमें खास बात ये है कि आपका जो मैसेज है वो चार्जेबल है। और वो चार्जेबल है, विंडो विंडो होती है 24 घंटे की। और इसमें टू टाइप कह सकते हैं हम, थ्री टाइप कह सकते हैं कि आपकी, वैसे तो इनकमिंग और आउटगोइंग ही होता है। तो इनकमिंग के आपके 35 पैसे लगते हैं। अगर आप इनकमिंग नहीं, आप आउटगोइंग कर रहे हैं तो आपका 82 पैसे होगा, और वो भी इस बेस पे होगा, मार्केटिंग और या यूटिलिटी। अगर मार्केटिंग का आपका आउटगोइंग मैसेज है तो 82 पैसे, अगर वो यूटिलिटी है तो 38 पैसे। यूटिलिटी को तो आपकी मार्केटिंग नहीं है, वो कोई ऑफरिंग या किसी भी तरह की एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे आप, तो उस कैटेगरी में ये कंटेंट डलेगा। तभी आपका ये जो है ये प्राइस यहीं से डिफाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली, सिस्टम है सारा। आपने यूटिलिटी कैटेगरी में डाला उसी तरह का चार्ज आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वॉलेट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे वॉलेट आपको देखने मिला था, वो चीज़ जैसे अभी मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ और मैंने कोई इमेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है। आई जस्ट सेलेक्ट वन, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको सेंड किया। ठीक है, अगर इस पार्टी को मैंने अभी मैसेज भेजा है तो मेरा अगर ये मार्केटिंग कंटेंट था तो मुझे 82 चार्ज लग चुके हैं, और ये वॉलेट से मेरे डिडक्ट होगा। इसमें कॉन्वर्सेशन फ्री नहीं है, ये पर्सनल की तरह नहीं काम करता, क्योंकि इसी में अलाउ है कि इसलिए आपका नंबर नहीं है। इसमें काफ़ी आपको फैसिलिटीज दी जाती है कि आपका नंबर ब्लॉक ना हो, आपका रिच एक्सपीरियंस इसमें हो। और वो भी नहीं चाहता कि कस्टमर आपके हटें या आपका कोई कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो। यस, तो मैंने यहाँ पे जैसे उस व्हाट्सएप पे जाके इसको हाई लिखा, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जैसे आपने लिखा ऑटोमेटिकली वेलकम आई, यानी हम चैटबॉट यानी इसके रिस्पॉन्स में कुछ भी ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि जैसे क्लिक करें तो हमारा अगेन टेम्पलेट आ जाए, इस बंदे को जिसका रिस्पॉन्स आया इसको मेरा मेल चला जाए, एसएमएस चला जाए। तो किट 19 मेकिंग यानी कंप्लीट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन वी आर डूइंग, क्योंकि वी आर नॉट अलाउिंग ओनली व्हाट्सएप, बल्कि वी आर मार्केटिंग चैनल ऑटोमेशन, एसएमएस, मेल, वॉइस, ये सारी चीज़ें इसके पीछे काम करेगी। इसमें एक एल्गोरिदम और इंगेजमेंट सेंटर, वर्क फ्लो जैसी चीज़ें, इसमें एक एडवांस चीज़ें हैं जो आपके सेल्स मार्केटिंग प्रोसेस को प्रॉपर ऑटोमेट करती है, यानी हॉट लीड फिल्टर करने में आपको मदद करती है, यानी आपके टन्स ऑफ टाइम और टन्स ऑफ एफर्ट को रिड्यूस करने में और आपके रिजल्ट को 3 गुना बढ़ाने में की कैपेसिटी रखती है किट 19। क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग सिंगल थिंग, वी आर वर्किंग कंप्लीट होल ऑटोमेशन। यस, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे चीज़ें आपकी अ, जैसे रिप्लाई आया तो ये विंडो डिसेबल हो गई है, यानी आई कैन स्टार्ट नाउ मैनुअल चैट। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन था, मैंने टेम्पलेट भेज दिया, वो था मेरे पास, तभी रिप्लाई आया, तभी मेरी विंडो ओपन हुई। और ये 24 घंटे तक वैलिड रहेगी, यानी कहने का मतलब है कि 24 घंटे का एक सिंगल चार्ज लगा आपका, और उसके बाद ये फ्री है, यानी मैं जितनी मर्जी चैट करूँ तो मेरा कोई चार्ज नहीं लगेगा। पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें स्निपेट्स, जैसे हमने यहीं पे साइड में एक चीज़ देखी थी, स्निपेट्स। तो स्निपेट्स का काम यही है कि आपको आपका जो भी टेम्पलेट तो वाइल बिफोर विंडो ओपन ना हो तब यूज करेंगे, स्निपेट्स आफ्टर विंडो ओपन करना कर सकते हैं। और ये आपके काम को इजी करने के लिए, मतलब आपको लंबा लॉन्ग मैसेज टाइप ना करना पड़े, तो यू कैन चूज लाइक, जैसे मैं यहाँ पे
टी मैंने प्रेस किया तो कुछ सजेशन आ गए। यस, तो मैं कुछ मतलब कहने का मतलब है कि ऑटो फिल जैसा आ जाता है। आपने यूज किया होगा कहीं टर्म में ऑटो फिल, ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। जैसे ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो आई कैन सेलेक्ट बिफोर टू सेंड, राइट। नहीं तो मैं एच मैंने लिखा तो एच से रिलेटेड ये आ गया, मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, और मैं अब इसको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्निपेट्स आप बना के अपने रख सकते हो, यूज कर सकते हो वाइल चैटिंग विद योर कस्टमर। चैटबॉट बिल्डर, ये एज ए जैसे चैटबॉट हमने देखा तो क्वेश्चन आंसर यहाँ से डिजाइन हो सकते हैं आपके, तो वो हम बिल्ड करके देंगे। और ये काम करता है ऑटो रिप्लाई करने में, और आपके जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन रहते हैं और इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें हैं। तो हमने इसमें डिज़ाइन भी किए हुए हैं, क्योंकि हमारा एक सीआरएम भी इसमें कवर करते हैं हम लोग। तो सीआरएम के भी कुछ फीचर्स इसमें, जैसे मुझे कस्टम प्लेस ऑर्डर, कस्टम इंफॉर्मेशन क्लाइंट की चाहिए वाइल द चैटिंग, उसका नाम, नंबर, सिटी। जैसे आप एजुकेशन में हो तो आप उससे कोर्स पूछेंगे, एजुकेशन पूछेंगे, कहाँ करना चाहते हैं, जैसे आप इंटरनेशनल ब्रॉड एजुकेशन में डील कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में डील जहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन और वो कैप्चर करनी हो सीआरएम में, तो आपको यहाँ पे सीआरएम भी दिया जाता है। और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे एसएमएस, मेल, वॉइस। तो क्वेश्चन डिफाइन हो जाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, नोट्स बनाए जाएंगे, नोट्स के पीछे नोट्स बनता है। ठीक है, मल्टी लेयर चार्टबोर्ड भी बोलते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ इसको बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके पीछे क्या इमेज, डॉक्स, ऑडियो, वीडियो जो भी लगना है वो मैं यहाँ से डिफाइन करूंगा। वो क्वेश्चन है, पैरामीटर्स हैं, वो मुझे करना पड़ेगा, राइट। सॉरी, फ्लो एंड करना है तो ये कर दूंगा, स्टार्ट किया मैंने ये। बाकी कंडीशन वगैरह, हैंगओवर एजेंट, इसको क्या है, एट्रीब्यूट्स, स्टेज, वेबहुक, क्रिएट टिकट, ऑल, ये सब हमने दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लेन, जैसे कोई सर्विस में है तो सर्विस, क्योंकि व्हाट्सअप का यूज अब सेल सर्विस दोनों के लिए ये हेल्पफुल है, कि जहाँ पे हम कस्टमर कंप्लेन जनरेट टिकट से जोड़ देंगे, टिकट मैनेजमेंट आता है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि हमारा एक सीआरएम भी है, तो यहीं से हम चीज़ों कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं यहीं से क्लिक टू कॉल भी दिया हुआ है, तो आईवीआर इसमें लगा हुआ है। तो यहीं पे हम फॉलो वॉलो लगाना है, जैसे कि फॉलो अप का बटन दिया हुआ है, फॉलो अप लगा सकते हैं कस्टमर को, जैसे दोबारा फॉलो अप करना हो आपको, आप ऐसे प्रोडक्ट सर्विस में डील करें जहाँ पे आपकी सेल साइकिल लंबी है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, और भी और सेक्टर आते हैं जहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा आपके लीड को ऑन टाइम रीच और फॉलो अप करने में, क्योंकि डैशबोर्ड पे ये सारा आपको दिखाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें सारे फीचर्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है फाइनेंस में, आप टिकट, कंप्लेन, पाइपलाइन, और आपका टेम्पलेट्स, ये चीज़ें आ जाएगी। टैग का यूज़ कर सकते हैं, हैच वगैरह दिया हुआ है, स्टार, और चैट शेड्यूल, जैसे फॉलोअप शेड्यूल होता है वैसे चैट शेड्यूल कर सकते हो। क्लाइंट ने टाइम दिया, 2 घंटे बाद चैट करना है, वो चीज़ें आ जाएंगी, राइट। बाकी इसमें आप अपनी चैट से रिलेटेड जो भी मान लो चीज़ें हैं, तो यहीं पे आप अपना जैसे ऑल चैट, अनरीड, स्नूज, और सर्च विद नेम, मोबाइल नंबर, कस्टम, ऑल, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप अपना जो भी एक्सवाइजेड भेजना चाहते हो, चैट ऑन करना चाहते हो, वो आयो। चलिए हम थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट में बात करें। ब्रॉडकास्ट के लिए देखिए, आपको टेम्पलेट, जैसे मैंने बताया था कि टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा अपना। सॉरी, ये चैटबॉट हो गया, फ्लो बंद कर देते हैं। टेम्पलेट बोले तो आपका जो चैट, अच्छा ये, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप जो भी कंटेंट बनाएंगे, आपका कंटेंट वेरीफाई होकर जाएगा। वेरीफाई बगैर नहीं जाएगा, तो इसमें जैसे टेम्पलेट होता है, आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका प्राइस डिफाइन करेगा। मार्केटिंग कैटेगरी आप चूज कर रहे हो तो 82 पैसे, यूटिलिटी 38 पैसे, ओटीपी के लिए ये 38 पैसे आए। कस्टम प्लेस होल्डर, टाइप ऑफ टेम्पलेट, जैसे मीडिया या टेक्स्ट, मीडिया में मतलब इमेज वगैरह आप ले सकते हो, बटन ले सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें कवर होंगी, राइट। बटन वगैरह है, फूटर है, मीडिया इंटरेक्टिव वगैरह जैसे होता है, वो उसमें आएगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देखा, जैसे ये बना हुआ है, अप्रूव्ड है, और यहाँ पे व्यू करेंगे आप। यस, जैसे मैं इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ इसमें, ये है, और ये बटन है। अब इस बटन को ऑटोमेट करना चाहते हैं जैसे आप, तो इसमें इसको ऑटोमेट करने के लिए इसके चीज़ें पीछे जो काम करता है ऑटोमेशन, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सीक्वेंस काम करता है, मार्केटिंग सीक्वेंस लगाना पड़ेगा कि अगर इंटरसेट बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, यानी कि सिस्टम को आपको कंडीशन देनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑटोमेशन है, जो कि बहुत सारी कंपनी आपको नहीं देती। तो ये चीज़ें, जिससे आपका कन्वर्जन रेशो बढ़ता है, और आपका क्लाइंट ऑटो पायलट मोड में इंगेज होता है। ठीक है,
आपकी ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट, ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपको चीज़ों को ध्यान रखिए, आपका जो डेटाबेस है वो सेगमेंट करना है या आपको वन बाय वन फाइल उसमें अपलोड करनी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का जैसे बटन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है आपका टेम्पलेट पहले अप्रूव होगा, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड होगी। आप ऐसा नहीं कि लिस्ट जाननी जरूरी है, वो लिस्ट इसलिए कि सेगमेंट वाइज, सेगमेंट मतलब बिहेवियर के हिसाब से अगर जाना हो तो उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने डेटा का सेगमेंट दिया हुआ है, आप लिस्ट बनाएंगे पहले। आपका जो डेटा है एक्सेल के थ्रू किट 19 में अपलोड होगा लीड सेक्शन में। क्योंकि लीड सेक्शन में क्यों इसलिए अपलोड होगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल हेडर्स हैं जिसमें आप अपने कस्टमर का बिहेवियर या उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी और अपने हिसाब से बना के डाल सकते हैं, या फिर आप फॉलो करते हो वो चीज़ें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक यूएई की लीड आई हुई है, तो मान लो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एक कस्टमर का ही लीड मुझे यहाँ पे दिखे, बल्कि कस्टमर की मैं मल्टीपल लीड्स एक्सेल के थ्रू या वन बाय वन भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं एक फॉर्म खोल लेता हूँ, जैसे मैंने तो वहाँ से सिंपल आपको डाल के दिखाया कि पर्सन का नाम, नंबर चाहिए मुझे या ऑलरेडी, तो यहाँ पे इस तरह से उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है, कस्टम फील्ड लिए जा सकते हैं। और इसको वैल्यू के हिसाब से ही हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा सेगमेंट क्या है, तो उसकी हिस्ट्री बिहेवियर के हिसाब से हम सेग्रीगेट करने के बाद ब्रॉडकास्ट प्लान कर सकते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन ये खोलेगा, सेगमेंट वाइज CSV, यानी डायरेक्ट डेटा बेस यहीं से अपलोड कर देना। जैसे 1000 नंबर मैंने लिए तो यहीं से अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं किए तो यहाँ से मैं सेगमेंट, मतलब ऑलरेडी मेरा डेटा अपलोड है, मैंने लिस्ट बना के तो यहीं से सेलेक्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन है मैनुअल, कॉपी पेस्ट। बस यहाँ पे डेट एंड टाइम दे दिया, टेम्पलेट कौन सा भेजना है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से उसके बाद इसको सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यस, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये था ब्रॉडकास्ट का प्रोसेस कि हम कैसे, बहुत ही ईजी है। उसकी वजह से आप लेते हो तो ट्रेनिंग वगैरह होती है। दूसरी चीज़, इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं इसे अपना एक्सेल में। फॉर्मेट मिलेगा यहाँ पे, वो फॉर्मेट में अपना जैसे नाम, नंबर, क्या क्या होना चाहिए, प्लीज अ सिंपलेस्ट। यस, जैसे फुल नेम, नंबर और ये मोबाइल। ठीक है, ओके। तो दो चीज़ ये होगी, लीड डायरेक्शन समझ लिया हमने। और ब्रॉडकास्ट की रिपोर्ट अगर देखनी हो तो मैं कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। ये मेरी ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट है, जैसे मैंने आज फिल्टर लगाया, मुझे दिखा रहा है इतने नंबर को मैंने भेजा था, इतने लोगों ने देखा, सेंड, डिलीवर, रीड, रिप्लाई। और ये नहीं गया है क्योंकि मेटा की तरफ से ओरिजिनल रिपोर्ट है, उसी के सर्वर से रिपोर्ट अपडेट होती है, 24 घंटे का टैट होता है। और यहाँ पे मैं मेजर कर सकता हूँ कि 3 रिप्लाई आए, तो रिप्लाई पे कुछ एक्शन या कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वो पीछे ऑलरेडी ऑटोमेशन दिया हुआ है कि अगर ये कोई रिप्लाई करे तो मेरा कोई टेम्पलेट, पेमेंट इंफॉर्मेशन या वो कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग, फॉर्म बुकिंग, क्या होना चाहिए वो सारा इसमें लिस्ट किया गया है। जिसको मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस मास्टर पे आप काम कर सकते हो। लीड एंटर होते ही कोई मैसेज मेल जाना चाहिए, लीड पे कोई मैसेज मेल जाना चाहिए, तो इसमें एक चीज और आती है आपकी, एंगेजमेंट सेंटर। ठीक है, तो दोनों अपना अपना काम करती हैं। जैसे मैंने बताया कि स्निपेट्स, सॉरी, ट्रिगर्स मैंने खोला और क्या खोला, सीक्वेंस। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक कैंपेन बनाया XYZ और उसका नाम दिया, उसमें मैंने एक बटन लिया अप्लाई नाउ। जैसे आप एजुकेशन में तो आपने कोर्स अप्लाई नाउ के लिए बटन क्लिक करवाया, और आप उस अप्लाई नाउ के हिसाब से आप चाहते हो कि उसको तुरंत मेरा चैटबॉट चल जाए, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा कोई टेम्पलेट चला जाए, स्निपेट्स, वेब बुक, या हमारी कोई टेस्टिमोनियल वीडियो चली जाए, मेल चले जाए, SMS चला जाए, वॉइस रिकॉर्ड अपडेट, जो भी रिकॉर्ड अपडेट हो वो सारी। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स आएगा जहाँ पे चीज़ें हम आपके हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करके उसको सेटिंग कर देंगे, उसके हिसाब से वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन गैदर और उसको रिप्लाई करने में हेल्प करेगा, डेटा कैप्चर। ये चीज़ें समझ आ गई, ये भी आपको ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट समझ आया होगा। ठीक है, और ट्रिगर, देखिए ये ट्रिगर क्या है कि वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो मैं आपके हिसाब से, जैसे मैंने कोई इंक्वायरी एडिट की व्हाट्सअप में, तो मेरा आ गया मैसेज, मेल या व्हाट्सअप जाना चाहिए, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये ट्रिगर है कि ऑटो कैंपेन होता है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है ये ट्रांजेक्शन। लाइक आप बैंक से पैसा विड्रॉल करते हो, तुरंत आपके मैसेज, ऐसे ही आप अपने लीड पे या उसके एक्शन पे कोई परफॉर्म करना चाहते हैं इवेंट, वो इवेंट परफॉर्म होगा। ठीक है, ये सेगमेंट वाला होगा। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट
And then move on to the another things that is called WhatsApp commerce. जैसे हमने यहाँ तक कर लिया था, एपीआई समझ ली थी। व्हाट्सअप कॉमर्स में क्या है, आजकल जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जियो का ये जो आया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया जियो, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे इनको प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है यहाँ पे, तो ऐसे ही आपका भी ई कॉमर्स अगर ऐसे प्रोडक्ट्स में ऐसे चीज़ों में आप डील कर रहे हैं कि जहाँ से कस्टमर आपके व्हाट्सअप से बुक कर सके और ये आपको रिक्वेस्ट डाल सके कि मुझे प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आप दे सकते हो, जिसको व्हाट्सअप कॉमर्स में कैरी ऑन होती है चीज़ें। तो कैटलॉग, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले ये जो कैटलॉग प्रोडक्ट हैं आपके, ये वेरीफाई होंगे पहले। बिना वेरिफिकेशन का आपका व्हाट्सअप ई कॉमर्स रेडी नहीं होगा। मेटा वेरीफाई करता है कि भैया आप किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, वो बैन कर रखी है उसने। तो वो पहले चीज़ें चेक होती हैं, फिर वो लिस्ट होके आपके कैटलॉग में दिखनी शुरू होती हैं, ठीक है। देखने के बाद फिर वो जब यहाँ पे आके आपके विंडो पे आके, यानी कॉन्वर्सेशन विंडो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आके वो, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे इनको दिखाया है, यहाँ पे ये कैटलॉग में जाके मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करके सबमिट करूंगा। एड्रेस, एड्रेस वगैरह मांगेगा, डिटेल मांगेगा, वो सारी चीजें, और वो दिखेगा कहाँ पे, ये बैकएंड होता है एक्चुअल में। ये जो बैकएंड है इसका व्हाट्सअप कॉमर्स का, ये व्हाट्सअप कॉमर्स का ये रिपोर्ट है, सॉरी, आपका जो डैशबोर्ड रिपोर्ट है व्हाट्सअप कॉमर्स की, वो है आपकी ये ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें वो प्रोडक्ट जिस जहाँ कस्टमर ने ऑर्डर डाले वो चीज़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं वो प्रोडक्ट इतने हज़ार की पेमेंट पेड हो गई है, ये पेड हो चुकी है, ये पेंडिंग है 16,000 की। तो आप जैसे नॉर्मली कॉमर्स के बिजनेस में, ई कॉमर्स के बिजनेस आपने देखा होगा कि फ्रंट कस्टमर एंड होता है जहाँ से वो ऑर्डर काट करता है आपका, अपने सबमिट करता है। सबमिट होने के बाद वो बैकएंड पे आपकी टीम के पास आ जाता है। अमेजन पे आप ऐसा नहीं होता कि आपने डाल दिया ऑटोमेटिकली चला, नहीं, उसके पीछे एक फिजिकल टीम बैठी हुई है जो आपका ऑर्डर चेक करती है और उसके बाद वो शिपमेंट के लिए आगे प्रोसेस में डालती है, ठीक है। जैसे कि तीन चीजें हमेशा चेक होती हैं, पहला ऑर्डर स्टेटस, दूसरा पेमेंट स्टेटस, और उसका फुलफिलमेंट। ऑर्डर स्टेटस में आ जाता है कि आपका ऑर्डर आगे मतलब डिलीवरी के लिए प्रोसेस करना है या नहीं करना है, यानी ऑर्डर मेरी तरफ से कंफर्म है, हाँ आपने ऑर्डर डाल दिया, यस, तो आप कंफर्म करते हो, राइट। दूसरा क्या है आपका पेमेंट स्टेटस, राइट। पेमेंट स्टेटस में वही कि पेमेंट आपकी कैसे आएगी, सीओडी पे दी हुई है, कंफर्म, कंफर्मेशन पेंडिंग, या सीओडी कंफर्म, ठीक है। तो सीओडी कंफर्म है तो आपकी पार्सल पेमेंट, फुल पेमेंट आप करेंगे या कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे आ रहा है ना सीओडी पेमेंट, राइट। ऑनलाइन पेमेंट या कैश या सीओडी, ऑनलाइन कर दिया या करेगा, वो मैं इसमें डाल के इसको सबमिट करूंगा। थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इज अ ऑर्डर के लिए आगे फुलफिलमेंट, या ऑर्डर को मुझे शिपमेंट के लिए रेडी करना है, यानी शिपमेंट के लिए रिक्वेस्ट, मैं इसको रेडी कर दूंगा या इसको एक्सेप्ट कर लूंगा कि नाउ आई एम पुटिंग दिस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर द शिपमेंट या डिलीवर्ड, डिलीवर्ड करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट, ऑनलाइन, पेमेंट कितनी है, किस प्रोडक्ट की है, वो चीज़ें करके इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिलते हैं जिससे कि आप अपने ऑर्डर इजीली मैनेज कर पाओ। दैट इज अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सअप कॉमर्स, और काफ़ी फंटेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि लोग आजकल 2 बिलियन से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, 90% ज़्यादा ओपन रेट है, और अगर सिनेरियो की बात कर लो कन्वर्जन की, यानी रिस्पॉन्स की, तो कहीं ना कहीं 10% से लेकर 30% तक का आपका व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आता है। बेसिकली कॉस्ट कैरी है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें हैं, बट इसके पीछे आरओआई भी अच्छी है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार एसएमएस का चार्ज है, ये है वो है। सर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, हर जगह इन्वेस्टमेंट होती है। बिना इन्वेस्टमेंट के आप कुछ भी आउटपुट नहीं निकाल सकते, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। ये जस्ट कहते हैं कि साइंस का एक लॉजिक है, एक फॉर्मूला है कि आप इनपुट डालते तो आउटपुट मिलता है, राइट। कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, ठीक है। आप एक्शन लोगे, चीजें डलेंगी तभी आएंगे, आप फ्री चाहेंगे तो फ्री में तो कुछ नहीं। तो ये पेड वर्जन है, और इसमें आप और मैं सेम पॉलिसी पे आ जाते हैं कि ये मेटा गवर्न कर रहा है इस प्राइस को। मेटा की तरफ से ही कुछ 10-5% कंपनी आपको सर्विस दे रही है, इतना सब कुछ, तो वो भी तो कमाएगी ना। तो वो चीजें हैं। बाकी
आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। बाकी इसमें रिपोर्ट रिपोर्ट आ जाती है आपकी, जैसे डैशबोर्ड आ जाता है कि आपको दिख रहा है कितनी चैट गई, कितनी आई, क्या डिलीवर हुआ, क्या इनिशिएट हुआ, राइट। वो आपको रिपोर्ट मिलती रहती है। ठीक है। व्हाट्सएप का एपीआई मैंने बता दिया कि एपीआई वगैरह भी आपका मिलेगा, ये सारे फीचर्स कवर होंगे। तो ये था गाइस व्हाट्सएप एपीआई में, जिसमें आपका नंबर ब्लॉक ना हो, आपका सब कुछ जेन्युइन चले, यानी फेक जैसे अभी कर रहे हो, फेक एक्टिविटी है मतलब, फ्री में तो कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली। तो ये पेड वर्जन है जहाँ पे आपका नंबर ब्लॉक होने से बचेगा, डल से बचेंगे, और जेन्युइन तरीके से चीजें होंगी। ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस। तो मेरा थोड़ा सा डैशबोर्ड लास्ट में ये रहता है, ये आपको दिखा देता है कितनी लीड्स या आपकी जो सीआरएम पे आई हैं या व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आएंगे थे। ऐसे तो हमारा ऑटो लीड कैप्चरिंग भी है इसमें, फेसबुक वगैरह जैसी चीज़ें हैं आपके पास, या वेबसाइट है, या कहीं चंचल इंडिया मार्ट से कनेक्टेड है, तो वो लीड भी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है, वो भी हम ऑटो कनेक्ट करते हैं। आपको ये दिखाता है कि किस सोर्स ऑफ मार्केटिंग से आपके लीड आ रहा है, कितना डेटा आ रहा है। यस, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है। हमारा सीआरएम भी अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आप अपनी पूरी फॉलो अप, टास्क, अपॉइंटमेंट जैसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और अपना आईवीआर भी है इसमें, जो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस, तो हमारा जो है कम्प्लीटली ऑमनी चैनल मैनेजमेंट है। व्हाट्सएप एपीआई के साथ सारी चीज़ें क्लब होकर चलती हैं। और इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड फॉर टू नो कंप्लीट ऑटोमेशन है, कि मैंने अभी बताया कि मेरा मोटिव अभी व्हाट्सएप एपीआई को लेके खाली ऑटोमेशन नहीं करना है, जिसको इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। तो यू कैन टेक सेपरेटली व्हाट्सएप इन, नो मैटर। आपको चीज़ें सही तरीके से करनी है और थोड़ा डिटेल करनी है, रिजल्ट अच्छे चाहिए आपको, तो आई सपोज एंड सजेस्ट टू यू, यू हैव टू यूज कंप्लीट ऑटोमेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।